So student, स्वागत है आप सबका. Now we have done with all the 6 sessions of mutual fund chapter, and now we are starting with case studies of this particular chapter जो ICSI ने past exam questions में पूछे हैं. And after doing this case study, this entire chapter will get over. So without wasting any time, let's move to the case studies which ICSI has asked from this chapter in previous examinations. So students, the first case study being asked in 2019 June 2 में क्वेश्चन पूछा गया है. क्या क्वेश्चन है देखते हैं. It says that Life Changing Asset Management Limited, a mutual fund company, desires to engage a Bollywood celebrity to popularize its scheme. Clear? Explain the provisions, SEBI provision with respect to celebrity endorsement of a mutual fund at industry level. Now, this is something what we have discussed under our session 5 that SEBI ने celebrity endorsement allow किया है at industry level, but not to promote a particular scheme or a particular mutual fund house. It is basically to promote the knowledge and awareness of mutual fund एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. एंड उस सेशन में सेशन 5 में हम लोगों ने कुछ एडवर्टीजमेंट भी देखे थे ऑफ द सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी. इन सब के एडवर्टीजमेंट में व्हाट वी हैव कंक्लूडेड कि उन एडवर्टीजमेंट में किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की बात नहीं हो रही थी. वहाँ पे म्यूचुअल फंड एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात हो रही थी विदाउट एंडोर्सिंग अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्कीम और विदाउट एंडोर्सिंग अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस. दे आर बेसिकली प्रमोटिंग द अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड. क्लियर? अब तो क्या लिखा है, तो सेबी Voided circular dated dash reviewed the advertisement guidelines for mutual fund. Now in this case it has been decided to permit celebrity endorsement industry level for the purpose of increasing awareness of mutual fund. मतलब what is being said at that time also and again that celebrity endorsement allowed किया गया है industry level only for the purpose of increasing awareness of mutual fund as a financial product category. However, such celebrity endorsement of mutual fund industry level shall be subject to the following condition. Now these are the same conditions जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अंडर सेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू द एडवर्टीजमेंट नॉर्म्स कि आपको प्रायर सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो म्यूचुअल फंड प्रमोट कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट है, ये किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम को प्रमोट नहीं करेंगे या किसी म्यूचुअल फंड हाउस को प्रमोट नहीं किया जा रहा है. दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड. क्या लिखा है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट शैल बी अलाउड ऑन इंडस्ट्री लेवल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट कैटेगरी. वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दे आर ओनली अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड. Such celebrity endorsement should not promote a scheme of a particular mutual fund or be used as a branding of a mutual fund house. मतलब यहाँ पे ये जो celebrity endorsement है ये किसी एक particular mutual fund की scheme को promote नहीं कर रहे हैं या किसी mutual fund house को promote नहीं करेंगे. मतलब their objective is only to promote the awareness of mutual fund, not of a particular mutual fund scheme. अब देखो आई क्या दिया है, नाउ एक्सपेंसेस towards such celebrity endorsement for increasing awareness of mutual funds shall be limited to the amount that are aggregated. Now ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी एक्सपेंस होगा इस तरीके के प्रमोशन के लिए ये कहाँ से निकाला जाएगा, उस फंड से निकाला जाएगा जो म्यूचुअल फंड को सेपरेट रखना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस. तो क्या लिखा है, the expenses towards such celebrity endorsement for increasing awareness of mutual funds shall be limited. कितना होना चाहिए, to the amount that is aggregated by mutual fund at industry level for the purpose of conducting investor education and awareness initiative. मतलब जो म्यूचुअल फंड को सेपरेट रखना पड़ता है किस काम के लिए, for the purpose of investor education and awareness initiative in terms of clause F. एंड फर्दर क्या लिखा है कि अगर आपको ऐसा सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कराना है तो आपको सेबी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो क्या लिखा है, प्रायर अप्रूवल सेबी शैल बी रिक्वायर्ड फॉर इशुएंस ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ म्यूचुअल फंड एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच फीचर्स अ सेलिब्रिटी फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस
ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब आपको प्रायर सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। डन, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में भी आया था एंड सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 2017 में भी आया था। क्या क्वेश्चन है देखते हैं कि एक म्यूचुअल फंड है, उसने रिपीटेडली एक्सीडेड द परमिसेबल लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू इट्स एसोसिएट ब्रोकर इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, मतलब म्यूचुअल फंड को एसोसिएट ब्रोकर के साथ कितना ट्रांजेक्शन कर सकता है, कितने वैल्यू का ट्रांजेक्शन कर सकता है, ये सेबी ने स्पेसिफाई किया है। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होगा तो अननेसेसरी ब्रोकरेज कॉस्ट बढ़ेगा जो कि इन्वेस्टर के लिए एनएवी कम कर देगा। क्या लिखा है, Consequently, a penalty of rupees 2 lakh was imposed by adjudicating officer of SEBI on this mutual fund. तो यहाँ पे when the adjudicating officer realize and they find that limit से ऊपर ट्रांजेक्शन किया गया था, उन्होंने 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दिया। म्यूचुअल फंड प्लीडेड फॉर वेवर ऑफ पेनल्टी स्टेटिंग दैट द लिमिट वाज नॉट एक्सीडेड इंटेंशनली, मतलब म्यूचुअल फंड ने बोला कि भाई ये लिमिट एक्सीड हुई है लेकिन इंटेंशनली एक्सीड नहीं हुई है, ये अनइंटेंशनल एक्सीड हो गया है। Is this penalty justified? Discuss in reference to relevant case. Clear? अब तो क्या लिखा है, the fact of the given case are similar to a case called SEBI versus Shriram Mutual Funds and other. Very important case है ये, केस का नाम आपको याद होना चाहिए, SEBI versus Shriram Mutual Fund and others. Now appeal wherein a penalty of 2 lakh was imposed by adjudicating officer on Shriram Mutual Fund as it has reportedly exceeded the permissible limit of transaction through its associate broker। मतलब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में बेसिकली इसी केस को रिप्रोड्यूस किया गया बिना नाम दिए हुए। तो वहां पे भी क्या बोला गया था कि श्रीराम म्यूचुअल फंड ने एसोसिएट ब्रोकर के साथ ट्रांजेक्शन किया एंड लिमिट से एक्सीड ट्रांजेक्शन किया एंड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। ऑन एन अपील बाय श्रीराम म्यूचुअल फंड, मतलब श्रीराम म्यूचुअल फंड ने क्या किया, सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में अपील किया सेट के सामने। सेट aside the adjudicating officer order inter alia on the ground that limit was not exceeded intentionally। सेट ने क्या किया, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन को कैंसिल कर दिया ये बोल के कि भाई लिमिट इंटेंशनली एक्सीड नहीं हुई है। अब सेबी ने क्या किया, सेबी फाइल्ड एन अपील अंडर सेक्शन 15Z, मतलब 15Z में आप अपील कहाँ करते हो, इफ यू रिमेंबर सेबी चैप्टर, आप अपील करते हो बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील किया इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। The Honorable Supreme Court set aside the judgment of SAT and settled the issue as under। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने SAT के डिसीजन को कैंसिल कर दिया। And what decision they have given? First, mens rea is not an essential ingredient for contravention of provision of Civil Act। अब देखो एक चीज समझो, what is mens rea? Mens rea का मतलब होता है guilty mind, मतलब mens rea is a very important aspect in terms of criminal offense, लेकिन सिविल ऑफेंस के लिए mens rea की देखने की जरूरत नहीं होती। तो क्या लिखा है, mens rea is not an essential ingredient, मतलब एक essential ingredient नहीं है for contravention of the provisions of Civil Act। सेकेंड क्या लिखा है, penalties attracted as soon as contravention of the statutory obligation as contemplated by the act is established, मतलब आपके ऊपर पेनल्टी इमीडिएटली लग जाती है जैसे ही आप कोई नॉन कंप्लायंस करते हो जो कि एक्ट में स्पेसिफाई है। एंड देयरफॉर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कमिटिंग सच वायलेशन बिकेम्स इमटेरियल, मतलब यहाँ पे पार्टीज का इंटेंशन क्या था नॉन कंप्लायंस होने की वजह से ये देखने की जरूरत नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जैसे ही एक्ट का नॉन कंप्लायंस हुआ सिविल एक्ट का, इमीडिएटली आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। अनलेस, थर्ड क्या लिखा है, अनलेस द language of the statute indicated the need to establish the element of mens rea, it is generally sufficient to prove that default in complying with the statute has been occurred। मतलब अगर एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई आपको इंटेंशन देखना पड़ेगा तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज सिविल ऑफेंस में जैसे ये स्टैब्लिश होता है कि डिफॉल्ट हुआ है, इमीडिएटली पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाती है। फोर्थ क्या लिखा है, once the contravention is established the penalty has to follow and only the quantum of penalty is discretionary। now this is very important कि जैसे ये establish होता है कि contravention हुआ है तो इसका मतलब पेनल्टी अब तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, कितना पेनल्टी लगेगा ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या जुडिशियल बॉडी डिसाइड कर सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द सेट हैज erroneously relied on the judgment in the case of Hindustan Steel Limited versus State of Odisha, as the said case has no application in the present case, which relates to imposition of civil liability under SEBI Act and regulation, and it is not a criminal or quasi criminal proceeding. Now this is very important कि अगर criminal proceeding होता है या quasi criminal proceeding होता है तो mens rea देखा जाता है, मतलब guilty mind देखा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सैट ने यहाँ पे जो डिसीजन दिया वो बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंसरिया देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिविल डिफॉल्ट है, इट इज नॉट अ क्रिमिनल और कॉजी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एंड देयरफॉर सेबी के फेवर में डिसीजन आया तो क्या लिखा, सेबी शैल सक्सीड इन इट्स अपील टू सुप्रीम कोर्ट। Clear? So these are the two case studies being asked from this particular chapter, and with this entire chapter of mutual fund is over. तो इस चैप्टर को ध्यान से समझने के लिए थैंक यू सो मच।